सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो मुझे डाउट पूछे हैं, तो जो कुछ काफ़ी मेजॉरिटी बच्चों के डाउट्स हैं उनको हमने चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज में कन्वर्ट किया है. आई होप यू विल प्रैक्टिस इट एंड इट विल बी हाईली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस. इन दिस प्रॉब्लम, okay, a ball is bouncing elastically with a speed 1 meter per second between the wall of a railway compartment of size 10 meter. Suppose आपका ये रेलवे कंपार्टमेंट है and it is given to you this size is 10 meter. ठीक है. एंड दिस बॉल इज बाउंसिंग इलास्टिकली. इलास्टिक कोलिजन ऑल ऑफ यू नो, जिस स्पीड से बॉल टकराएगी उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी. तो सपोज आपकी बॉल जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ पे कोलाइड होगी और वापस रिबाउंड हो जाएगी. कंपार्टमेंट की साइज 10 मीटर है. द ट्रेन इज मूविंग इन द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल. ये आपकी ट्रेन ऐसे चल रही है विद 10 मीटर पर सेकेंड. एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. अब देयर इज ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है. With respect to this observer, we have to study the situation, which is the incorrect option. Option A, the direction of the motion of the ball changes every 10 seconds. अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं when the ball is moving toward the positive x-axis and train is also moving in the same direction. So if I ask you what is the velocity of the ball with respect to this ground or this observer, you will say me 10 plus 1, 11 meter per second, because 10 is toward this side, 1 is toward this side. But when this ball is moving in the negative x direction, still we are agreed that the train is moving with the 10 meter per second. So if I observe the ball with respect to ground, we all are intelligent, we all are agree that the velocity of the ball with respect to ground will be given by the 9 meter per second, but speed will remain in the same direction. It will not change. Of course, magnitude is changing. So when the direction of the motion changes every 10 seconds, no, it is incorrect option. So we have to check the incorrect. It means option number A. This can be the answer. Speed of the ball changes every 10 seconds. Perfectly true. With respect to ground, after every 10 second, आप चेक कर सकते हो स्पीड कितनी होगी. 11 मीटर पर सेकेंड, फिर 9 मीटर पर सेकेंड. और टाइम 10 सेकेंड क्यों लगा? ये आपको दिख रहा होगा 10 मीटर चलने में उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो 10 सेकेंड तो लगना ही है. चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ. एवरेज बॉल स्पीड ऑफ द बॉल ओवर एनी 20 सेकेंड इंटरवल इज फिक्स्ड. ये में चेक करना है. देखो 20 सेकेंड के अंदर हर बार बॉल यहाँ से स्टार्ट होगी और घूम फिर के वापस बॉल यहाँ आ जाएगी. यानी जहाँ से बॉल जिस एंड से स्टार्ट हो रही कंपार्टमेंट में वहीं पे बॉल पहुँच रही है. तो ये तो डिस्टेंस फिक्स हो गई. और हर 20 सेकेंड में ट्रेन एक्सेलरेट भी नहीं हो रही, तो ट्रेन की डिस्टेंस भी फिक्स है. ट्रेन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी? 20 × 10 दैट इज 200 मीटर. इट मीन्स in each and every 20 second interval, speed is fixed because distance covered is same. This is correct option. The acceleration of the ball is same age from the train. अब देखो यहाँ पे हमने inertial frame और non inertial frame पढ़ा है. This ball is standing on the ground, inertial frame. This train is also not accelerating. This is also inertial frame. So acceleration of the ball will remain same either you observe from the train or you observe from the stationary observer, because both are the inertial reference frame. So I hope the option is very much clear to you. We have to select the incorrect option. So option A is the answer. This is your answer. Like this. Okay. Now we move to the next situation. In this problem, velocity time graph is given to us for the one dimensional motion. There are 3 equal time interval. This t1 equal to t2 equal to t3. We have given this shaded zone. We have to choose the correct statement. Magnitude of the acceleration is maximum during third time interval. अब देखो पहला वन, आपको पता है acceleration क्या होता है? Change in velocity upon change in time. That you know very well. अब डेल्टा टी तो चाहे 1 रीजन निकल लो, चाहे सेकंड रीजन निकल लो, चाहे थर्ड रीजन निकल लो, ये तो फिक्स है. यानी सारा आपका गेम डेल्टा वी पे डिपेंड करता है. अब आप ऑब्जर्व करो डेल्टा V1 ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितनी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है. इफ़ यू ऑब्जर्व इट वेरी माइन्यूटली,
तो आपको पता चल रहा होगा, लेट मी क्लीन इट सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इट अगेन। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा डेल्टा V2 में तो बहुत कम चेंजेज है। अगर आप इस टाइम में देखोगे तो बहुत कम चेंजेज है, तो ये तो सबसे कम हो गया। और यहाँ पे देखो ध्यान दो, डेल्टा V1 और डेल्टा V3, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू डेल्टा V3 ये यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रहा है, डेल्टा V3 इन मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन डेल्टा V1 मैग्नीट्यूड वाइज इज ग्रेटर देन डेल्टा V2। V2 में लेस चेंज है, ये आपको पता चल गया। It means magnitude of the acceleration is maximum during the third time interval. It is perfectly true. Particle is speed up during first and third time interval. अब हम फर्स्ट पे देखते हैं। I hope it is visible to all of you. In the first time interval, velocity is positive. Second में आप देखो यहाँ से घूम फिर के वापस यहाँ आ गया, तो velocity of course पॉजिटिव है सेकंड में भी। अगर आप सेकंड टाइम इंटरवल लोगे तो वेलोसिटी तो आपकी पॉजिटिव है। और थर्ड टाइम इंटरवल बिलो द एक्सिस है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो आप स्लोप देखोगे, फर्स्ट टाइम इंटरवल में स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। थर्ड टाइम इंटरवल यू कैन प्रेडिक्ट इट बिकॉज यहाँ पे कर्व हो रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव है, यू कैन प्रेडिक्ट। इन थर्ड टाइम इंटरवल इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू स्लोप इज ऑब्वियस, इट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड अप। Negative velocity, negative acceleration, speed down. Sorry, speed up. This is also speed up because velocity negative, acceleration is negative. It means definitely this option is also true. Particle is speed up during the first and third time interval. Now next, particle is moving opposite direction in first and third time interval. It is very simple. यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी स्पीड पॉजिटिव है, कम ज़्यादा से मतलब नहीं, स्पीड डायरेक्शन मोशन सेम है और वो पॉजिटिव है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डायरेक्शन मोशन चेंज हो गया, तो ऑप्शन सी भी आपका ट्रू है। स्पीड रिमेन कांस्टेंट इन सेकंड टाइम इंटरवल, ऑल ऑफ यू एग्री, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, कर्व बन रहा है। अगर ये ग्राफ यहाँ पे इस तरह से होता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तब आप बोलते हैं स्पीड इज कांस्टेंट। सो वी एग्री ऑप्शन ए, बी एंड सी इज ट्रू, सो ऑप्शन 2 इज परफेक्टली ट्रू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे देखिए, इन दिस प्रॉब्लम an object is dropped from the top of a tower so that it falls freely. Suppose this is a tower and you are dropping the object, it means u equal to 0. It falls freely, means gravity is acting there. Neglect all the force except gravity, it is telling also. We have to count the gravity. State which of the following statements are true. हमें चेक करना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं पूछा उसने, ट्रू पूछा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, change in velocity per unit time remains same. We all intelligent. When the object falls freely, gravity is acting 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हो। यानी ईच आफ्टर एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी विल स्पीड अप बाई 9.8। अगर आपने 10 ले ली तो 10 बोलोगे, अगर आपने ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया क्या बोलोगे, शुरू में वेलोसिटी 0 है, आफ्टर 1 सेकेंड 10, नेक्स्ट 1 सेकेंड 20, नेक्स्ट 1 सेकेंड 30 एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑप्शन ए इज परफेक्टली ट्रू। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? अब हम ऑप्शन बी की बात करें। इन ऑप्शन बी, चेंज इन वेलोसिटी इन सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस, सपोज पहले डिस्टेंस आपने एक्स ली, नेक्स्ट डिस्टेंस आपने ली एक्स, नेक्स्ट और ले लिया आपने एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पीड कुछ ना कुछ थी, ये वेलोसिटी थी, आप कहते हैं v1, यहाँ पे थी आपकी v2, यहाँ पे थी आपकी v3, ठीक है। नो, चेंज इन वेलोसिटी सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस ऑफ फॉल। सबसे पहले हम v1 देखते हैं, एक्स डिस्टेंस सेवल करने में। वी ऑल इंटेलिजेंट, v1 इक्वल टू √2gx। कैसे आया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही जगह जी रखोगे। अब v2 निकालना मुझे, तो ऑफकोर्स जब मैं v2 निकालूंगा तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ u इक्वल टू 0 और मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो मैंने डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी 2x, तो मैं क्या लिखूंगा, v2 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो 0 हो गया, प्लस 2as के क्या लिखूंगा 2gx प्लस x कितना हो गया 2x, रूट आ जाएगा, तो वैल्यू मेरी कितनी होगी √4gx। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर मैं v3 कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे मेरी स्पीड कितनी है, ये वेलोसिटी कितनी, v3 क्या लिखूंगा
रूट 2gx की जगह कितना हो गया 3x. इट मीन्स व्हाट आई कैन से रूट 6gx. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ये बात सबको क्लियर हो गया. अब मुझे क्या करना, चेंजिंग वेलोसिटी निकालना, v2 माइनस v1 v3 माइनस v2. तो जब आप v2 माइनस v1 करोगे तो आप क्या लिखोगे, रूट gx तो बाहर ले लो भाई, ये सब में कॉमन है. अंदर क्या बचा, रूट 4 माइनस रूट 2. रूट 4 ऑफकोर्स 2 होता है. ये मेरा क्या हो गया v2 माइनस v1. अब अगर मुझे v3 माइनस v2 देखना है, मैं यहीं पे देख लेता हूँ v3 माइनस v1, तो रूट gx तो मेरा बाहर आ गया. अंदर क्या बचा ब्रैकेट में मेरा, रूट 6 माइनस रूट 4. ये बात आपको पता चल गई क्या, एवरीबॉडी इज क्लियर. ठीक है. अब कुछ बच्चे यहाँ पे रूट 2 भी कॉमन ले सकते हैं. मतलब कुछ बच्चे हैं इसको इस तरह से भी किया, मैंने इस तरह सोचा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको. लेट मी क्लियर इट अगेन. हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. अगर आप इसको लिखते हो रूट 2gx, तो देखो v2 को आप क्या लिखोगे, ध्यान दो, यहाँ पे रूट 2gx है. अगर मैं इसमें रूट 2gx बाहर ले लूँ, रूट 2gx बाहर ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली रूट 2. ये बात आपको क्लियर हो गई. तो जो v2 माइनस v1 करोगे वो आपके लिए सिंपल हो जाएगा. v2 माइनस v1 आपका क्या बनेगा, रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2gx. ठीक है. इसी तरह v3 के लिए क्या बोलोगे तुम लोग, जस्ट टेक मी अपॉइंट. ओके, v3 के लिए आप लोग क्या बोलोगे, v3 इक्वल टू, मैं रूट 2gx बाहर ले लेता हूँ, रूट 2gx बाहर ले, अंदर क्या बच गया, ओनली रूट 3. तो अगर मैं v3 माइनस v2 करूँ तो रूट 2gx तो मेरा कॉमन आ गया, रूट 2gx कॉमन आ गया. अंदर क्या बच गया मेरा, रूट 3 माइनस रूट 2. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आप कैलकुलेशन करोगे, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 1.41 माइनस 1.41, रूट 3 1.732 माइनस 1.414. ये वाली रूट 2gx तो भूल जाओ. कैलकुलेशन करोगे तो ऑफकोर्स चेंज इन वेलोसिटी इन सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ 4. दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. आई होप इट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब सी पार्ट, उसके लिए हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड. तो सी पार्ट में वापस हम स्टार्ट करते हैं. देखो सेम वही सिचुएशन है, आप ऑब्जेक्ट ड्रॉप करवा रहे हो, इट फॉल फ्रीली ऑफ कोर्स, नेगलेक्ट ऑल फॉल्स. वही बात, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टेबल आपका ऑप्शन है, ऑप्शन भी तो ट्रू हो गया था ना. रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टेबल इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल टाइम इंटरवल विल फॉलो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर 1:3:5. देखो फर्स्ट 1 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करें. सपोज यहाँ पर t इक्वल टू 0 था, ये हो गया t इक्वल टू 1 सेकेंड, और आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने x1. तो ऑल ऑफ यू एग्री, x1 के लिए आप क्या लिखोगे, हाफ g t स्क्वायर क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर इज 1. x1 तो आपका ही आ गया. अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में देखो आप लोग, अगर आप कहते हो नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करें, इसको आप x2 बोलते हो. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे टाइम लग रहा है आपको 2 सेकेंड. तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी इसने, आप क्या बोलोगे, x1 प्लस x2 इज गिवन बाई हाफ g. टोटल टाइम कितना हो गया, 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स 4. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज x1 प्लस x2 हाफ g t स्क्वायर. टोटल टाइम कितना हो गया, 2 2 4. मुझे तो x2 निकालना है. x2 को मैं क्या लिखूंगा, हाफ g 4 माइनस x1 मेरा कितना था ऊपर, हाफ g. हाफ जी कॉमन ले लोगे, 4 माइनस 1 करोगे कितना आ गया, 3. तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 इंटू 3g. फिर अपन आगे देखें. नेक्स्ट सपोज नेक्स्ट 1 सेकेंड में 3 सेकेंड में आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो है आपकी x3. ठीक है जी. अब आप x3 निकालोगे तो आप पहले क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 कैलकुलेट करोगे. यू तो 0 था, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर. टोटल टाइम कितना लगा, 3. 3 स्क्वायर मीन्स 9. 9 लिख दो इसको, दिस इज 9. अब देखो x1 कितना है, हाफ जी. x1 कितना हो गया आपका, हाफ जी. x2 कितना है, 1/2 इंटू 3g. 1/2 इंटू 3g. अब देखो 9g में से 3 और 1 गया, 4 गया, कितना बच गया, 5. तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/2 इंटू 5g. अब आप देखो x1 इज टू x2 इज टू x3, आप चेक करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 1:3:5. इट मीन्स
रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल विल फॉलो द गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल पैराबोला। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला बनना मस्ट है। इट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी ऑल आर ट्रू। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। अब इस प्रॉब्लम को देखिए। वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स की वैल्यू रखी है आपको t माइनस साइन टी, एंड आपको चेक करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो x इज गिवन यू t माइनस साइन टी। अब x भी चेक करना है, वेलोसिटी भी चेक करना है, एक्सेलरेशन भी चेक करना है। अब वेलोसिटी की वैल्यूज देखनी है, ठीक है सब। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लो। v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो t का तो डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस साइन टी का कितना हो गया, cos t। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो सब। एक्सेलरेशन 1 का 0 माइनस cos t का माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस साइन टी, तो ये कितना हो गया, एक्सेलरेशन आपका हो गया साइन टी। ठीक है जी, क्योंकि 1 का 0 माइनस और cos t का माइनस साइन टी माइनस माइनस प्लस। अब आपको मैंने साइन और cos का मैंने जब थ्योरी लेक्चर में पढ़ाया था, आपको मैंने बता रखा था कि साइन के लिए आप ये लाइन कर लो 0 0 1 और माइनस 1। इज इट क्लियर? और cos का मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, cos के लिए आप ये याद कर लो 1 0 माइनस 1 एंड 0। ठीक है, अब हम साइन का वैल्यू डिफरेंट एंगल पे देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे t इज ग्रेटर देन 0 की बातें पूछ रहा है, तो t इक्वल 0 तो पुट करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो t इज ग्रेटर देन 0, तो मैं एक तो वैल्यू ले लेता हूँ पाई बाई 2। तो जब मैं t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 कितना है मेरा 1 माइनस 1। तो ये तो मेरा पॉजिटिव हो गया, बिकॉज 3.14 में से माइनस 1 करूँगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, अब मैं वेलोसिटी की बात करूँ, 1 माइनस कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 होल ऑफ इज 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। ये भी ग्रेटर देन 0 ही है, पॉजिटिव है। उसका एक्सेलरेशन साइन पाई बाई 2, अगेन साइन पाई बाई 2 वैल्यू मेरी कितनी आ गई 1। तो ये तो t इक्वल टू पाई बाई 2 सब सेट हो गया। अब मैं t इक्वल टू पाई पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे t इक्वल टू पाई की सिचुएशन, मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है, सबसे पहले मैं x की बात कर रहा हूँ, पाई माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी देखो 0, तो पाई माइनस 0 तो पाई भी लिख लो, ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन 0। अब वेलोसिटी की बात करो, 1 माइनस कोस पाई, देखो यहाँ पे कोस पाई कितना -1, तो माइनस माइनस 1 ये कितना आ गया 2, ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब एक्सेलरेशन की बात करूँ, साइन पाई इज 0, एक्सेलरेशन हो गया मेरा 0, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन फॉर 0 और t इज ग्रेटर देन 0, ये तो मेरा कट गया, ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो ट्रू है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। अब मैं t की वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट t की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ 3 पाई बाई 2। देखो सबसे पहले मैं x निकाल रहा हूँ, क्या लिखूंगा 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2। ध्यान दो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये भी पॉजिटिव होना है, पक्का है। अब वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं 1 माइनस कोस पाई बाई 2, कोस 3 पाई बाई 2 कितना मेरा 0, ये मेरा कितना आ गया 1, v इज ग्रेटर देन 0 भी सही है। और एक्सेलरेशन मैंने पहले ठीक कर लिया था, ये भी पंगा खत्म हो गया मेरा। अब मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट टाइम, वापस घूम फिर के मैं चला गया t इक्वल टू 2 पाई पे, यहाँ पे आ गया मैं, इस टाइम पे आ गया। तो देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले मैं x की वैल्यू देखता हूँ, x इक्वल टू 2 पाई माइनस साइन 2 पाई कितना हो गया 0, 2 पाई माइनस 0 0, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब मुझे वेलोसिटी देखनी है,
1 माइनस कोस 2 पाई, इन कोस 2 पाई कितना हो गया मेरा 1, तो वापस मेरा कोस 2 पाई में ही आ गया 1 हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो ये मेरा ग्रेटर देन 0 वाला फंडा भी खत्म हो गया। तो मैंने देखो पूरा राउंड लगा के देख लिया चेक करने के लिए, तो ऑप्शन ए भी गया, बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया, यानी ऑप्शन ए तो मेरा पक्का सही है। अब मुझे चेक करना कि वी की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है। देखो आपने पूरा राउंड लगा लिया, तो वी की वैल्यू कौन कौन सी है उसको आप हाईलाइट कर लो, आपको फील हो जाएगा। एक तो आपकी वी की वैल्यू आई 0, एक तो वी की वैल्यू 0 आई, और टी इक्वल टू पाई बाई 2 वी कितना है तो आपको 1, टी इक्वल टू पाई बाई 2 वी कितना है तो आपका 2, 3 बाई 2 वी कितना है था 1। तो देखो सबको विजिबल होगा 0 और 2 के बीच में, तो ऑप्शन डी भी ट्रू हो गया आपका। यानी व्हाट यू विल से द ऑप्शन ए एंड बी नो, बी एंड सी नो, सी एंड डी नो, ए एंड डी यस, ऑप्शन 4 इज परफेक्टली ट्रू। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। ओके, in this situation, if the given graph is possible in realistic situation, then y and x variable may represent respectively. रियलिस्टिक सिचुएशन, रियल लाइफ में ये चीज़ें सोचनी है आपको, रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में है ना। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लो, यहाँ पे टाइम ले लो, ठीक है। तो ये तो दिखते पता चल गया पॉसिबल नहीं है। फिर देखो टाइम कभी वापस पलटी थोड़ी मारता है, तो टाइम पलटी मार रहा है ना, टाइम इधर जाके वापस पलटी मार रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बात ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम पॉसिबल नहीं, क्योंकि टाइम पलटी मारा ना, टाइम तो पलटी मार ही नहीं सकता, वापस आता ही नहीं है, वो तो आगे एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। तो डायरेक्ट हो गया सवाल हमारा, ऑप्शन 3 इज परफेक्टली ट्रू। ठीक है, हम नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। देखो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये देखना आपको। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। देखो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज गिवन बाय dr बाई dt, ये आपका फॉर्मूला है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, इट डिपेंड्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। तो ऑप्शन 1 तो आपका रॉन्ग हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम ऑप्शन 2 को देखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है फॉर्मूला, एक तो होता है आपका dv बाई dt, एक तो आपका फॉर्मूला होता है, और आपको पता है अगर आप ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लोगे या dr से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर dr लिया तो यहाँ पे dr ले लो, dr बाई dt क्या हो गया आपका वेलोसिटी, तो आप इसको क्या लिखोगे v dv बाई dt, v dv by dr, sorry, like this. Instantaneous acceleration is independent of instantaneous position vector and instant, no, it depends on the instantaneous velocity. It depends, it is given, it depends on the instantaneous velocity. Option B wrong होगा। Instantaneous acceleration is independent of the instantaneous position, इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं आ रही, पोजिशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, बट डिपेंड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस इट डिपेंड्स अपॉन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये भी आपका ट्रू हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिपेंड बोथ ऑन इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नो, ओनली वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है ना, आर तो आ ही नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन 3 इज परफेक्टली ट्रू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे देखते हैं। ओके, इफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव, आपको ये बोल रहा है कि यू आर टेकिंग दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द फ्री फॉल। आप ये फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरा रहे हो, ठीक है, आपको बताना कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कैन रिप्रेजेंट, ठीक है जी। ऑफ कोर्स पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऑप्शन 1 तो ट्रू हो गया। वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, जस्ट y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ है, और वेलोसिटी आपकी 0 से बढ़ रही नेगेटिव साइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ये भी ऑप्शन ट्रू हो गया।
ये एस और टी में ग्राफ आपको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनना ही बनना मस्ट है। दूसरी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा है, एस की वैल्यू में नेगेटिव आना मस्ट है, -1 -2 -3 -4 -5, तो ये ऑप्शन भी 3 हो गया, ट्रू हो गया, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है ए कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद 144 किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रेट रोड है, यहाँ पे आपकी कार चल रही है 144 किलोमीटर पर आवर, तो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 8 जा 144, 8 5 जा 40, कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर ये कह रहा है इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद इस कार को रुकना है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0, ये रेस्ट पर आ गया। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, यहाँ जाने में उसको टाइम कितना लगा, तो आप लगा लो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहाँ से टाइम कितना हो गया v माइनस यू अपॉन एक्सेलेरेशन। अच्छा, आपको एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा, तो पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो इधर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर तो 0, 40 स्क्वायर 1600 प्लस 2 इंटू ए इंटू 100, तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया आपका -1600 अपॉन 200, तो कितना आ गया आपका -8। रिटार्डेशन है ऑफकोर्स, एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ गया, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप टाइम निकालोगे, v की जगह 0, u की जगह 40 और एक्सेलेरेशन कितना आपका -8, 8 5 जा 5 सेकेंड, देखो आपको 5 सेकेंड ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन 2 कटा गया था। तो ऑप्शन 1 भी पॉसिबल है, ऑप्शन 3 भी पॉसिबल है, ऑप्शन 4 भी पॉसिबल है। एक कहानी तो टाइम की निकल के कितनी देर लगेगी। अब सवाल का अगला पार्ट कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डबल्ड देन स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम का मैंने आपको लॉजिक समझा रखा है थ्योरी लेक्चर्स में। स्टॉपिंग डिस्टेंस में आप डायरेक्ट लिखोगे यू स्क्वायर इक्वल टू 2as की जर्नी। स्टॉपिंग टाइम में आपको मैंने इसी चैप्टर में इम्पल्स का फील करा दिया, इम्पल्स से सोचोगे सवाल को। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो मैं आपको बोला है यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, ये मैंने आपको सिखा रखा है। सो जब स्पीड 40 की थी तब हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 100। अब आपने स्पीड डबल कर दी, आपने 80 कर दी, 80 स्क्वायर सपोज डिस्टेंस आपकी x जो कि आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब आप सॉरी दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ मैं क्या लिखूंगा 80 इंटू 80 अपॉन 40 इंटू 40 इक्वल टू x अपॉन 100। देखो जी 42 जा 80, 42 जा 80, 2 2 जा 4, 4 इंटू 100 400, तो मेरा 400 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पे है, तो मेरा ऑप्शन 4 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो ए कार कंप्लीट 2 लैप अराउंड 1 किलोमीटर रेस्ट ट्रैक, ये आपका रेस्ट ट्रैक है जिसकी पूरी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर कर सकते हो ना। एट एन एवरेज स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड, 2 लैप में उसकी एवरेज स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 2 लैप का मतलब कितना चला वो 2000 मीटर और उसकी एवरेज स्पीड कितनी बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। द कार इज टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 लैप। अब 4 लैप लगा लिए इसने, यानी कितना चला 4000 मीटर और क्या इसकी एवरेज स्पीड है जी 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट शुड बी एवरेज स्पीड फॉर लास्ट 2 लैप। अच्छा, लास्ट 2 लैप के लिए एवरेज स्पीड ऑफ कोर्स लास्ट 2 लैप का डिस्टेंस तो आपको क्लियर है 2000 मीटर। अगर किसी तरह लास्ट 2 लैप का मुझे टाइम मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो फर्स्ट 2 लैप का मैं टाइम निकालता हूँ यहाँ से t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, 25 8 जा 200, ये तो हो गया मेरा 80 सेकेंड। और
लास्ट 4 सेकेंड का टाइम निकालूँ, ये मेरा T2 है, तो बचा हुआ टाइम जो T2 माइनस T1 होगा ये 2 लैप्स का हो जाएगा। इसका टाइम कितना हो जाएगा मेरा T2 माइनस T1, ठीक है। तो मैं T2 निकालूँ, T2 मेरा कितना हो गया जी 4000/28, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 1000/7। अभी कैलकुलेट मैंने आपको क्या करना होती है कोशिश, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो T2 माइनस T1 कितना हो गया मेरा 1000/7 माइनस 80, ठीक है। ये मेरा लास्ट 2 लैप का टाइम हो गया। तो मुझे स्पीड निकालनी है लास्ट 2 लैप की। कितनी स्पीड होगी लास्ट 2 लैप की, एवरेज स्पीड ऑफ द लास्ट 2 लैप यानी 2000 अपॉन, इसको सोल्व करो, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 बना दो, ऊपर नीचे 7 कर दो, तो 1000 माइनस 560/7, तो ये मेरा टाइम कितना आ गया, दिस इज 440 है ना, व्हाट यू विल से 440/7। अब आप इसको कैलकुलेट करो कितना हो गया 14,000, एक जीरो तो काट ही दो ना, और 2 से काट दो 22 हो गया, तो 14 मत लिखो इसको, आप क्या करोगे इसको 700/22, और 700/22 आप कैलकुलेट कर लो, 700 डिवाइडेड बाई 22, यह आ गया 31.81, यानी आपका ऑप्शन 3। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट अल्फा फॉर डिस्टेंस। अच्छा, मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको पढ़ाया, जब भी ऐसा सवाल आया आप ग्राफ बना लो, उससे सवाल करना काफ़ी इजी हो जाते हैं हमारे। आप वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाओ। यहाँ पे एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यानी आपको रेस्ट से स्टार्ट करना है, फॉर ए कांस्टेंट अल्फा फॉर डिस्टेंस x1 टाइम t1, ये आप इसको एक्सेलरेट करा दो, और आपको गिवन है यहाँ पे दिस टाइम इज गिवन यू t1 और रेट अल्फा v इक्वल टू यू प्लस ए टी करोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे अल्फा t1, और एरिया बिलो द ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे, एरिया बिलो दिस ग्राफ, ये वाला एरिया, वी ऑल नो दिस एरिया शुड कम x1, ठीक है। आफ्टर दैट रिटार्डेड कांस्टेंट, अच्छा कोई कांस्टेंट स्पीड में डायरेक्ट रिटार्डेशन करो, कांस्टेंट रेट बीटा फॉर डिस्टेंस x2 एंड टाइम t2। अब आपको पता नहीं अल्फा ज़्यादा है बीटा ज़्यादा है, बट दोनों डिफरेंट है, ये बात पक्का है। तो ये डिस्टेंस सेम नहीं हो सकती, टाइम सेम नहीं हो सकती, आपको पता है। बट वन थिंग वी नो वेरी वेल, अल्फा t1 मस्ट बी इक्वल टू बीटा t2, ये तो क्लियर है ही, हमने थ्योरी में पढ़ा था। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ भी वो लॉजिक लगा लोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपका क्या आ जाएगा अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, क्यों, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनली v कितना आ रहा है आपका 0, ठीक है। u आपको निकालना है, रिटार्डेशन कितना है आपका बीटा, और टाइम कितना लगेगा इस जर्नी का t2। तो देखो u की वैल्यू बीटा t2 आ गया ना, तो अल्फा t1 और बीटा t2 दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ से आप देखो कुछ कुछ हमें आंसर मिलेंगे, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा, तो मैं अल्फा तो t1 है, बीटा t2, तो t2 बाई t1 है ना, तो बीटा t2 हो गया, अल्फा t1 हो गया, तो अल्फा बाई बीटा इज t2 बाई t1, ये तो गया काम से, ये इन्होंने अल्फा बाई बीटा उल्टा कर लिया, तो अल्फा बाई बीटा t2 बाई t1, ये ऑप्शन पॉसिबिलिटीज बन रही है। फिर यहाँ पे देखो अल्फा t1 बीटा t2, ये भी बनने की ऑप्शन बन रही है, अल्फा t2, ये गलत हो गया। अब इन दोनों ऑप्शन में दिमाग लगाना सेकंड में थर्ड में, ठीक है जी। तो अब मुझे x1 x2 के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। देखो ये जर्नी मेरी होगी x2 डिस्टेंस, तो सबसे मैं x1 निकाल रहा हूँ, x1 एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका एरिया निकाल रहा हूँ x2, हाफ बेस इनटू हाइट। ऑफ कोर्स अल्फा t1 इक्वल बीटा t2, t2 के बारे में बात करो तो इसको बीटा t2 कर लो, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब मुझे x1 बाई x2 करना है, आंसर निकालना है। तो आप देखो
अगर मैं यहाँ से x1/x2 करता हूँ तो देखो अल्फा T1 इक्वल टू बीटा T2, ये तो कट गया ना मेरा, हाफ से हाफ भी कट गया, तो ये मेरा कितना आ गया T1/T2, यानी x1 T2 और x2 T1, x1 T2, ये तो गलत हो गया था, x1 T2 और x2 T1, ये सही हो रहा है, x1 T1 है, ये गलत हो रहा है, तो ऑप्शन 2 आ गया मेरा। ओके, नेक्स्ट देखो। ओके, इन दिस प्रॉब्लम position of a particle moving along axis is given by this: x equal to plus 8t minus 4t square। द डिस्टेंस टेबल, आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सवाल बड़ा केयरफुली करने होंगे, है ना। डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल पूछ रहा है फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल 2 सेकेंड। तो सबसे पहले देखो कि ऐसा तो नहीं है 0 से 2 सेकंड से पहले वेलोसिटी 0 हो रही है, क्यों वेलोसिटी 0 हो रही है तो पलटने के चांसेस है, सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो dx/dt। आप क्या बोलोगे, 2 का तो 0 हो गया, 8t का 8 माइनस 4 इंटू 2t 8t, और यहाँ से 8 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस टी। ऑफकोर्स वेलोसिटी विल बी 0 एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, पलटी मार रहा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो जो आवक जाओ, जो आने में टाइम लगा वो जाने में टाइम लगा, डिस्टेंस से हम ट्रेवल करेंगे। तो सबसे पहले मैं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी x वो निकाल लो। मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन v dt। तो x मेरा कितना हो गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन v कितना है मेरा 8 माइनस 8t इंटू डी टी। सोल्व करूंगा 8t माइनस 8t स्क्वायर बाई 2, x कितना हो गया मेरा 8t माइनस 4t, और लिमिट क्या लगानी मुझे 0 to 1। मैं यहाँ पे लिमिट दूसरे कलर से लगा देता हूँ 0 to 1, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 to 1, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0 to 1। 8 माइनस 4, ये मेरा कितना हो गया 4, यानी 0 से 1 सेकेंड में मैं 4 मीटर चला है, तो 1 से 2 में कितना चलूंगा 4 चलूंगा, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया मेरा 8, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके, ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। वो जर्नी है, आपने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करी x/2 मान लो, आपकी स्पीड है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये रिमेनिंग हाफ की बात कर रहा है, कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। अब यहाँ पे टाइम सेम है, ये टाइम और ये टाइम आपका सेम है, मान लो ये भी हो गया t2 और ये भी हो गया t2, ये t1 मान लेना इधर करने का टाइम, ठीक है। विथ स्पीड ऑफ 4.5 एंड 7.5, यहाँ पे स्पीड इसकी 4.5 मीटर पर सेकेंड बेटा, और यहाँ पे 7.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड का तो डायरेक्ट लॉजिक हो गया, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 इज x अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t2, कितना हो गया 2t2, ठीक है। तो t1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, t1 कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/2 अपॉन 3, ये तो कितना आ गया आपका x/6, ठीक है। अब मैं t2 निकालता हूँ, देखो t2 के लिए आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड है x/2, और कुछ डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे स्पीड इंटू टाइम 4.5 इंटू t2, और कुछ के लिए क्या लिखोगे 7.5 इंटू t2, तो 7 प्लस 4 11 12, तो ये हो गया 12t2, ठीक है। तो t2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी x/24। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूँ, तो क्या लिखूंगा x अपॉन t1 की जगह क्या लिखूंगा x/6 प्लस t2 की जगह 2 तो आ गया, t2 की जगह क्या लिखूंगा x/24, x तो कॉमन लेके काट दो तुम लोग, ये तो कट गया। अब इसको भी काटो, 2 से काटा, ये आ गया 12, है ना। अब आपने क्या करना है 1 अपॉन 1/6 प्लस 1/12, इसको भी 12 बना दो 2, तो ये 6 2 12, 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो कितना आ गया 12/3, आपको कितना आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 1, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट।
द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम इज दिस, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। द एक्सलेशन एट टाइम t ऑफ द पार्टिकल विद जीरो, एक्सलेशन कब जीरो होगा और टाइम निकालना है। ठीक है साहब, पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो। तो एक्सेलरेशन सॉरी a इन टी स्क्वायर हो गया 2t माइनस b, ये कितना हो गया आपका 3t स्क्वायर, यानी आप क्या लिखोगे 2AT माइनस 3BT स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर डिफरेंशिएट करो, dv/dt करोगे ना एक्सेलरेशन को, तो 2a माइनस 3BT स्क्वायर का 2t, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 2a माइनस 6BT। अब एक्सेलरेशन किस टाइम पे जीरो होगा, इसको जीरो कर लो, तो क्या लिखोगे आप 2a इक्वल टू 6BT, तो t की वैल्यू कितनी हो गई 2a अपॉन 6b, यानी आंसर कितना आ गया a अपॉन 3b। चेक करो, ऑप्शन 3 इज योर आंसर। A particle traveled 10 meter in first 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड में ये 10 मीटर चलता है, 10 मीटर नेक्स्ट 3 सेकेंड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक्सेलरेशन स्मॉल है था, सब जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, हमें नेक्स्ट 2 सेकेंड की जर्नी की बात करनी है और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो हमें निकालना है। सपोज यू से द इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो 10 मीटर चल रहे हो 5 सेकेंड में, आप लगाओगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 10 मीटर u की जगह u, t की जगह 5, तो यू विल से 5u प्लस हाफ AT स्क्वायर मीन्स 25। तो एक इक्वेशन बन गई आपकी, 5 कॉमन ले लो इसको, है ना, तो 2 इक्वल टू u प्लस 5/2a, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर नेक्स्ट 3 सेकेंड, भाई वही u है वही a है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी 10 की 8 सेकेंड में 10 प्लस 10 20, तो आप क्या लिखोगे 20 इक्वल टू 8u प्लस हाफ a इंटू 8 स्क्वायर, कितना हो गया 64। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। हाँ 8 तो ले नहीं पाऊंगा ना, 4 ही ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो ये मेरा 32 हो गया, तो मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 5 जा, 4 2 जा और 4 8 जा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 भी होगी, इक्वेशन 2 भी होगी। अब मैं किसी तरह u और a निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना बन गया 4 इक्वल टू 2u प्लस 5a, इसको इक्वेशन 3 बोल दूँ। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो आप, अगर आप 2 माइनस 3 करोगे, देखो आपको क्या मिला, जैसे आपने 2 माइनस 3 किया, 5 माइनस 4 तो 1 मिल गया, 2u से 2u कट गया, 8a माइनस 5 कितना मिल गया 3a मिल गया, तो यहाँ से देखो अब एक्सेलरेशन आ गया आपका 1/3। चेक करो, एक्सेलरेशन 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपको u मिल जाएगा। समझ में यहाँ रख रहा हूँ, 5 इक्वल टू 2u प्लस 8/3, तो मैं क्या लिखूंगा 2u इक्वल टू 5 माइनस 8/3, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल गया 2u इक्वल टू 15 माइनस 8, कितना हो गया 7/3। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे, u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/6, तो u आ गया आपका 7/6, तो u आ गया, ये आपका u आ गया है ना, और एक्सेलरेशन भी आ गया, ये आपका एक्सेलरेशन भी आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे पहले इस जर्नी में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 3 8 प्लस 2 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में मैं कितना चला वो निकाल लेता हूँ, है ना। तो देखो मैं थोड़ा स्पेस बनाऊंगा यहाँ पे, 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी मैंने, है ना, यहाँ से यहाँ तक मैं 10 सेकेंड में चला हूँ।
तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, यू तो मैं रखूँगा 7/6 इंटू 10 प्लस हाफ एक्सलेशन हो गया मेरा 1/3 इंटू 10 स्क्वायर यानी 100 है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड कितना हो गया 70/6 प्लस 100/6 यानी कितना हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड इज 170/6 170/6 28.33 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है मेरी 28.33। तो उसमें से मैंने 20 माइनस करना है, तो -20 करूँगा क्या होगा 8.33 यानी ऑप्शन 1। ठीक है। A balloon start rising from the ground. It is ground. With an acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released. अब suppose 8 सेकंड में बैलून आपका यहाँ आ गया, इस पे एक स्टोन लगा हुआ है, वो आपने रिलीज किया। तो इनिशियल इस स्टोन की स्पीड तो ऊपर होगी, क्योंकि बैलून के साथ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी स्पीड है v = u + 80 से कर लो। स्टार्ट राइजिंग यानी स्टार्ट राइजिंग तो इनिशियल तो 0 हो गया, तो v = u + 80 है कितना है 1.5 इंटू टाइम कितना हो गया 8। ये आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है। और इसने कितनी हाइट ट्रेवल करी, पहले ये हाइट भी निकाल लो जो आपको कुछ फील हो जाए। h कितना होगा, u तो 0, हाफ 80 स्क्वायर यानी 1.5 इंटू टी स्क्वायर 8 इंटू 8, so basically 2 4 जा like this, तो 1.25 इंटू 32, 1.25 इंटू 32, ये मेरा आया 40 मीटर। ये मेरा कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है। और ये मेरा कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब ये कह रहा था स्टोन विल हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर। देखो आपने यहाँ से रिलीज किया तो पक्का स्टोन किस तरह से चल रहा होगा, जैसे आप रिलीज करोगे स्टोन कुछ इस तरह से ऊपर जाके ऐसे नीचे आ रहा होगा। दिस इज इनिशियल पोजिशन, दिस इज फाइनल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर नॉट 50 मीटर। ऑप्शन 1 तो आपका रॉन्ग हो गया। कवर डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर रीचिंग द ग्राउंड, ये भी गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर है, डिस्टेंस तो मोर देन 40 है ना, क्योंकि यूँ जाके फिर 40 चला, ये भी गलत हो गया। रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, अब ग्राउंड में इट रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, इसको ग्राउंड में आने में 4 सेकेंड लगते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो आपका फॉर्मूला क्या है, S = ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सपोज आप डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है, तो नीचे आ रहा है फाइनली, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका -40। इनिशियल रिलीज कर रहे थे तब यू ऊपर की तरफ था, यू हो गया 10 इंटू टी। एक्सलेशन नीचे ग्रेविटी लग रही है, रिलीज करते तो ग्रेविटी लगेगी, उससे दूर हो गया तो उसका एक्सलेशन लगेगा नहीं, तो -हाफ माइनस के लिए, क्योंकि ए मेरा नेगेटिव में ए कितना लेना मुझे 10 ले रखा है, 10 इंटू टी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई। क्या लिखूँ मैं, -40 = 10t -5t स्क्वायर। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 5t स्क्वायर -10t -40 = 0, यानी t स्क्वायर -2t -8 = 0। 5 2 से 5 8 से बिल्कुल सही यहाँ तक। अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके 2 फैक्टर कर लो, या तो 4 और 2 कर लो ना। हाँ, टी स्क्वायर -4t + 2t -8 = 0। यहाँ से सोल्व करोगे टी की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी -2, एक आएगी 4, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 3 इज परफेक्टली ट्रू। बिगिंस टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, जैसे छोड़ोगे नीचे दौड़ जाएगा भाई, उस समय बैलून ऊपर जा रहा है और आप बैलून के साथ हो, तो आपकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है स्टोन की भी, तो इट विल नॉट मूव डाउन। तो ऑप्शन 3 इज परफेक्टली ट्रू। ओके, नेक्स्ट। ओके, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड,
Assuming that air resistance to be constant in magnitude. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस आपको काउंट करना है. देखो मैंने आपको एक चीज़ याद करा रखी है, जब भी आप एटमॉस्फेयर काउंट करोगे, एयर रेजिस्टेंस काउंट करोगे, तो जब ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी और नीचे आओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी. ये हमने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो किसी हाइट h पे आवक और जावक का टाइम कितना होता? t इक्वल टू रूट 2h/g. लेकिन अगर ग्रेविटी के साथ में एयर रेजिस्टेंस भी है तो ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ असेंट रूट 2h, और ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एटमॉस्फेयर का रेजिस्टेंस लग रहा है. और टाइम ऑफ डिसेंट मैंने बता रखा आपको, रूट 2h अपॉन g-a. अब बताओ, ऑफ कोर्स इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, टाइम ऑफ डिसेंट is greater than time of ascent. So अच्छा, टाइम ऑफ असेंट पहले देखना था, तो टाइम ऑफ असेंट लेस देन कर लो, तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता. टाइम ऑफ असेंट लेस देन ये सही है, ये हो नहीं सकता. इक्वल टू ऑप्शन 2 इज परफेक्टली ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, 3 different objects of mass m1, m2 and m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट. अच्छा, तीनों का रेस्ट से रिलीज कर रहे हो ना, m1, m2 एंड m3. दे आर ड्रॉपिंग u इक्वल टू 0. दे आर रिलीजिंग फ्रॉम रेस्ट. सेम पॉइंट हो, एक किसी पॉइंट हो से आप तीनों को रिलीज कर रहे हो नीचे की तरफ. अच्छा, 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, 3 डिफरेंट पाथ ले लो. मान लो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इस पाथ पे जा रहा है, बट फ्रिक्शनलेस है ना, यानी एनर्जी कंजर्व है. द स्पीड ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी. अब देखो, आपको सबको पता है व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस टू द ग्राउंड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. आपका अगर h हाइट से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ओनली ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हो, तो v इक्वल टू क्या आएगा? रूट 2gh. हाइट सबकी सेम है. अब ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, बट वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, तो v इक्वल रूट 2gh लगाओगे तो तीनों में सेम सेम ही आएगा. तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर? 1:1:1, बिकॉज ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट, a particle move along a straight line OX. At a time t, the distance of the particle from O is given by x equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? मतलब कितनी देर जाके रुकेगा. ठीक है सर. सबसे पहले आप t इक्वल टू 0 पे इसका x कोऑर्डिनेट देखो, x इक्वल टू 40, यानी ऑलरेडी इनिशियल पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है आपका 40,0. ठीक है. अब पहले इन सवालों में क्या देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है कहाँ पे जाके रुक रहा है, वो v निकालना. पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. डिफरेंशिएट करो, 40 का 0, 12 माइनस 3t स्क्वायर. कहाँ जाके रुका? 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 करो, तो 3 4t स्क्वायर प्लस माइनस नेगेटिव होगा नहीं, तो आपका देखो टाइम आ गया 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पे इसको रुकना है. बिकॉज 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा. अब 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड में मान लो ये रेस्ट पे आ गया. अब t इक्वल टू 2 सेकेंड में x की वैल्यू कितनी होगी? 40 प्लस 24 माइनस 2 2 4, 4 2 8, कितना हो गया x? 64 माइनस 8, यानी आपका कितना होगी? 56. x की कोऑर्डिनेट कितना होगी? 56. तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 56 माइनस 40, यानी 16 मीटर. ऑप्शन 4. ओके. नेक्स्ट, ओके. A particle is moving along x-axis. Particle is moving along x-axis. Has acceleration f. At time t, that acceleration f is given by, at time t, acceleration is given by f naught 1 minus
t by capital T, where f naught and capital T are constant. At t equal to 0, particle has 0 velocity, t equal to 0, velocity equal to 0. In the time interval between t equal to 0 and the instant when f equal to 0, the particle's velocity is, अच्छा हमें पहले तो वो टाइम निकालना जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dv by dt इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, क्योंकि मुझे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन तो मिल जाए पहले, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ dv इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी इंटू डी टी, सॉरी इंटरेक्शन लिमिट लगा लेते हैं, एफ नॉट तो कांस्टेंट है। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, आफ्टर सम टाइम टी इट इज़ v, तो dv का आप क्या लिखोगे, v लोअर लिमिट अपर लिमिट एफ नॉट 1 माइनस डी टी इज टी माइनस टी डी टी इज टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2t एंड लिमिट इज गिवन बाई 0 टू t। तो लिमिट लगाओ आपको v माइनस 0 इज v, एफ नॉट, अब 0 से कोई मतलब नहीं, टी पुट करो तो कितना आ गया, एफ नॉट टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 कैपिटल टी। चेक करो, ये आपका आ गया एफ नॉट टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो आप इसको, ये क्या कह रहा है आपको। तो ये तो मेरा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया है ना। अब मुझे व्हेन एफ इक्वल टू 0, जो मेरा एक्सेलरेशन 0 होगा वो टाइम निकालना है। तो एक्सेलरेशन को मैं 0 कर रहा हूँ यहाँ से, एक्सेलरेशन 0 करूँगा, एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट है चला गया, तो कितना बच गया 1 माइनस टी बाई टी, बिकॉज ये 0 रखूँगा तो 0 इक्वल टू एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट है 1 माइनस टी बाई टी इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कैपिटल टी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, ये कि टी की जगह मैं कैपिटल टी रखूँ, तो v इक्वल टू कितना हो गया मेरा, एफ नॉट कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, तो v इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस ये टी से टी कट गया टी बाई 2, तो आंसर आएगा मेरा एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2, एफ नॉट कैपिटल टी बाई 2, ऑप्शन 1, ओके। नेक्स्ट, the position x of a particle with respect to time along x-axis is given by x equal to 9t square minus t cube, x in meter, t in seconds. What will be the position of the particle when it is maximum speed? अब देखो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाई हुई है, स्पीड मैक्सिमम है यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया, बिकॉज स्पीड मैक्सिमम है यानी डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ही मिलेगा ना, तो एक्सेलरेशन 0 कर दो। तो पहले तुम इसकी वेलोसिटी निकालो, 9t स्क्वायर का मेरा हो गया 2t माइनस 3t स्क्वायर, तो कितना हो गया मेरा 18t माइनस 3t स्क्वायर, 3 कॉमन ले लो, तो वेलोसिटी कितना आ गया, ये इतना ही रख लो, चलो अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए। मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ पहले, एक्सेलरेशन कितना हो गया 18 माइनस 60। अब मेरा एक्सेलरेशन कब 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है बिकॉज स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, स्पीड मैक्सिमम तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होगा, तो आपका टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 सेकंड। अब टी की वैल्यू 3 सेकंड यहाँ पुट करो, आपको पोजीशन पता चल जाएगी क्या पोजीशन है। एक्स की वैल्यू 9, टी स्क्वायर की जगह फिर 9 3 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 81 माइनस 27, है ना, ठीक है। तो 81 माइनस 9 27, 11 माइनस 7 4 54, है ना। तो व्हाट यू विल से, ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2, इट इज 54 मीटर। मूव टू द नेक्स्ट, देखो ए पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप यानी dx by dt। अब मैं स्लोप देखूँ, पहले मैं स्लोप यहाँ डाल रहा हूँ, फिर स्लोप यहाँ डाल रहा हूँ, फिर स्लोप यहाँ डाल रहा हूँ, फिर स्लोप यहाँ डाल रहा हूँ,
तो क्वाइट ऑब्वियस, स्लोप इज मैक्सिमम, तो ऑप्शन सी, इट मीन्स इंस्टेंस वेलोसिटी पार्टिकल इज मैक्सिमम एट पॉइंट सी. मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन. देखो, a particle moves in a distance x in time t according to the relation this x equal to t plus 5 power minus 1. The acceleration of the particle, okay, acceleration या velocity और distance में हमें relation चाहिए. ठीक है, सबसे पहले acceleration के लिए पहले इसका differentiate करो तो velocity आएगी dx by dt. तो इसको लिखोगे आप d by dt t plus 5 minus 1, तो x की पावर n लगा लो, nx n minus 1 minus 1 t plus 5 minus 1 minus 1 minus 2, और बाद में t का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो ये आपका वेलोसिटी आ गई. तो वेलोसिटी कितनी आ गई अभी, माइनस t प्लस 5 की पावर माइनस 2. ठीक है, अब एक्सेलेरेशन निकालना है, डिफरेंशिएट फिर कर लो dv बाई dt माइनस फिर nx n माइनस 1 माइनस 2 t प्लस 5 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3. एक्सेलेरेशन कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 t प्लस 5 पावर माइनस 3. अब हम देखो ऑप्शंस में से कैसे बैठेगा हमारा ऑप्शन. सबसे पहले डिस्टेंस चेक कर लो, है ना. एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू t प्लस 5 की पावर माइनस 2 है, माइनस 1 है, माइनस 3 है, तो क्यूब आना चाहिए, तभी t प्लस 5 की माइनस 3. ये तो बैठेगा नहीं, एंड डिस्टेंस का ऑप्शन तो कट गए मेरे. अब मुझे वेलोसिटी का ऑप्शन चेक करना है. अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मैं देखना पड़ेगा. v मेरा है t प्लस 5 की पावर माइनस 2. ओके, तो देखो t प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान दो. t प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, माइनस तो आई v की पावर 1/2, है ना. क्योंकि इधर मैं 1/2 कर लूँ तो इधर भी 1/2 करूँगा, तो ये हो गया मेरा t प्लस 5 की पावर माइनस 1 इक्वल टू v की पावर 1/2. ओके, समझ में आ गया. अब t प्लस 5 की पावर माइनस 3 है, यहाँ पे t प्लस 5 की पावर माइनस 3 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, v की पावर 3/2, यानी वेलोसिटी पावर 3/2. देखो चेक करो, तो आप क्या आएगा, ऑप्शन 2. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन. If a body lose half of its velocity on penetrating 3 centimeter into wooden block, ये आपका वुडन ब्लॉक है. यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, मान लो आपकी v है, और 3 सेंटीमीटर चलता है, और वेलोसिटी होगी आपकी v/2. ठीक है, हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट. अच्छा, कितना और चलेगा. देखो रिटार्डेशन पूरा सेम है कि वुडन ब्लॉक सेम है, तो पहले मैं यहाँ पे रिटार्डेशन निकालूँ कितना लग रहा है. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनली v/2, तो v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2. अब सेंटीमीटर में है तो मैं सेंटीमीटर में सोच रहा हूँ, a इंटू 3. ठीक है, तो v स्क्वायर बाई 4 माइनस v स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 3/4 v स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू 3. 3 से 3 कट गया, तो मेरी a की वैल्यू आई है माइनस v स्क्वायर अपॉन 8. ये मेरा रिटार्डेशन आ गया 2 4 8. ठीक है, अब अगर इसी रिटार्डेशन चलना होता तो पहले तुम लोग सोचो कितनी दूर जाके रुकता. यहाँ से चलता और यहाँ कितनी दूर जाके रुकता. सपोज ये डिस्टेंस x और यहाँ पे रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई. तो आप वही क्वेश्चन लिखो वापस, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0, u स्क्वायर क्या लिखोगे, v स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, माइनस v स्क्वायर अपॉन 8 इंटू एक्स. निकालनी है डिस्टेंस, तो v स्क्वायर कॉमन लेके बाहर पहुंचा दो, 2 4 8, एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस पूरी 4 सेंटीमीटर है. अब आपको रिमेनिंग डिस्टेंस निकालनी है, ये 4 है, ये 3 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची मेरी 1 सेंटीमीटर. देखो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 सेंटीमीटर. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेटर. मैंने आपसे क्या बोला, वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बनाओ ऐसा सवाल के लिए. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ f. शुरू की जर्नी में एक्सेलरेशन इसका है f. ठीक है,
पूरा डिस्टेंस एस, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस। तो पहले तो आप पहली जर्नी कंप्लीट कर लो सब। ये फर्स्ट जर्नी यहाँ पे अपन एक्सलेशन हो रहा है ना, और अपन मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लग रहा है मेरा t1। अब v इक्वल यू प्लस ए टी करोगे तो आपका ये ए यानी एफ t1 आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड इज एस, यानी एरिया अंडर द ग्राफ एस इक्वल लिखोगे हाफ बेस इंटू हाइट t1 इंटू एफ t1 स्क्वायर, यानी एफ t1। तो कितना आ गया आपका एस इक्वल टू एफ t1 स्क्वायर बाई 2। ये तो फर्स्ट जर्नी, जितनी जर्नी आपको समझ में आ रही है उतना कर लो। उसके बाद ये क्या कह रहा है आपसे, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड, अब इसी स्पीड पर टी टाइम तक चल रहा है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस टेबल करी होगी, और यहाँ पे टाइम मैंने मान लिया t2 लगाया, नहीं टाइम t दे रखा है मुझे, ये टाइम मेरा है t, ठीक है। अब मैं ये डिस्टेंस मेरी s1 है और इस डिस्टेंस को मैं s2 लिख लेता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं s2 लिख लेता हूँ। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। s2 कितना लिखोगे, एरिया अंडर द ग्राफ एफ t1 इंटू टी, जितना समझ में आ रहा है उतना करते जाओ। देन डिसलेट एट द रेट f/2 टू कम टू रेस्ट। अब डिसलेशन हो रहा है, अब हम इसको डिसलेट कर देते हैं सब। अब डिसलेशन आधा है, तो मैंने तुम्हें थ्योरी में लेक्चर में समझा रखा है, अगर डिसलेशन आधा है तो यहाँ टाइम t1 लगा है तो इस जर्नी का टाइम 2t1 हो गया, क्योंकि आधा है ना, ये टाइम कितना लगेगा 2t1। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 2t1 कैसा है। अगर आपको बाई चांस याद नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सोचोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनली v कितना हो गया 0, u कितना है आपका ft1 और प्लस डिस्लेशन एट द रेट f/2, इसको लिखो माइनस f/2 इंटू टी। तो देखो t इक्वल टू 2t1 आ गया ना, f से f कॉमन लेके काट दोगे। तो जो आपको मैंने लर्न करा रखा वो कर लो, कैलकुलेशन कर लो, तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि डिस्लेशन आधा हो गया तो टाइम डबल हो गया। अब ये डिस्टेंस है मेरी s3, तो मैं s3, वैसे तो मैं लॉजिकली फिर याद आ गया होगा, अगर ये डिस्टेंस s होती है 2s होगा, जो तुम्हें मैंने थ्योरी लेक्चर्स में लर्न करवाया। बट अगर आपको लर्न नहीं है आप कैलकुलेट करो, आप कहेंगे s3 इज गिवन बाई हाफ इंटू बेस, बेस कितना आपका 2t1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी ft1, तो बेसिकली कितना आ गया आपका ये ft1 स्क्वायर। तो देखो ये था ft1 स्क्वायर बाई 2 s1, तो ये कितना हो गया आपका s3 की वैल्यू कितनी हो गई ft1 स्क्वायर बाई 2, ft1 तो 2s1, 2s1 कितना हो गया 2s, क्योंकि s1 कितना मेरा s, तो मेरा ये भी मेरी कहानी मुझे समझ में आ गई यहाँ तक की। तो पहले आप लोग यहाँ से चेक करो एक बार, कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। देखो इसको अच्छी तरह, अब देखो ये s1 था आपका s, s3 आपका आ गया 2s, और टोटल डिस्टेंस 15s है, तो s प्लस 2s 3s इसमें माइनस हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 15s माइनस 3s, ये कितनी होगी 12s, है ना। तो आपने लिखना है रिमेनिंग डिस्टेंस s2 की वैल्यू कितनी होगी 12s, और s2 कितना था ft1t इक्वल टू ft1t। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब हमें किसी तरह इनमें रिलेशन निकालना है, तो हम अगर t1 और t में सेटिंग कर लें तो हमारा काम हो जाए। देखो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, s इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है ना, s इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ लिखा था मैंने ft1 स्क्वायर बाई 2, ft1 स्क्वायर बाई 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँ तो मुझे क्या मिला 12 इक्वल टू s से s कट गया, f से f भी कट गया, 12s बाई s, पहले पूरा लिख लो इसको, f t1 इंटू टी ft1 स्क्वायर इंटू 2, है ना। अब आप क्या करोगे इसको, 2 6 12, f गया यहाँ से t1 गया, तो मेरे ख्याल से मेरा इक्वेशन आ गया t इक्वल टू 6t1। देखो t इक्वल टू मेरा आ गया 6t1, यहाँ तक कहानी सेट हो गई मेरी, या t1 इक्वल टू t/6, या t1 इक्वल टू t/6। तो अब मेरा t1 इक्वल टू आ गया t/6। अब मुझे केवल s की वैल्यू निकालनी है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये इन दोनों को सेट करो, s इक्वल टू हाफ ft1 स्क्वायर, तो s इक्वल टू हाफ f तो f ही रहेगा, t1 स्क्वायर यानी t स्क्वायर बाई 36, t स्क्वायर बाई 36,
तो एफ टी स्क्वायर बाई 32 आ गया ना, एफ टी स्क्वायर बाई 32 आ रहा है, एफ टी स्क्वायर बाई, तो यही आएगा ऑप्शन 3, चेक करो, एफ टी स्क्वायर बाई 72, ठीक है। आगे देखो, ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। चलो भाई फ्रीली गिर रहा है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ हो और 50 मीटर पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पैराशूट ओपन किया, तो यहाँ तक कुछ ना कुछ चला, कुछ ना कुछ टाइम भी लगा हुआ, कुछ ना कुछ स्पीड पे आई हुई, पक्का ही हुई। अब उसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया, पैराशूट ओपन हो गया, रिटार्डेशन हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ग्राउंड पे आकर टकरा रहा है। यहाँ पे आकर जब टकराता है उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट हाइट डिड ही बेल आउट, कितनी हाइट पे उसने अपने आप को बेल आउट किया। देखो सर, आपको ये वाली पूरी हाइट निकालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ग्राउंड तक की, एच। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसकी स्पीड क्या वो निकाल लेते हैं। आपका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर, यू तो 0, टू ग्रेविटी 10, डिस्टेंस 50, तो वी स्क्वायर हो गया 5 2 जा 10, 1000 हो गया। तो वी कितना हो गया 10 to 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे अगर किसी तरह से ये वाला टाइम और पता चल जाए या ये हाइट पता चल जाए, मेरा काम ही हो जाए। फिर मैं लगाऊंगा सेम फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे मेरी इनिशियल स्पीड कितनी है 10√2, इसका स्क्वायर कितना था 1000, यू स्क्वायर जगह लिखूंगा मैं 1000, -2, माइनस को लगा कि एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है -2, और ये डिस्टेंस सपोज मेरी h1 है इंटू h1, और फाइनली मैं 3 से टकरा रहा हूँ, 3 3 9। सो व्हाट वी कैलकुलेट 9 1000, पहले इसको सॉल्व कर लो 1000। अच्छा मैंने ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव ले लिया था तो ये प्लस होगा, क्योंकि ए को मैंने अगर नेगेटिव ने बाहर ले लिया था, -4h1। तो 1000 में से 9 गया तो 4h1 इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं 991। तो मेरा h1 कितना आया, h1 आया मेरा 991/4। तो h1 मेरा आ गया 4 2 जा 8, 9 - 8 गया 1, 4 4 जा 16, फिर 9 - 6 3, 4 7 जा मतलब समथिंग 247 समथिंग है ना, और 50 ऑलरेडी था, h1 में 50 तो जोड़ूंगा ना, तो 240 समथिंग और 50 ऐड किया तो 297 है ना। तो कैलकुलेशन देख लेना अप्रोक्सीमेटली, और आंसर इज 293। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो 991 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका वही 247 ही आ रहा था, तो 247.7 है, कोई बात नहीं, और 50 तो 297। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ गया मेरा 293। हो सकता है हमने ग्रेविटी 10 ली, इन्होंने 9.8 ली, तो ऑप्शन 293 आ गया, ठीक है। तो we move to the next situation. Okay, so this is the end. तो जैसा मैंने आप लोगों से बताया कि हम लोग 11th और 12th के जो बच्चों ने मुझे डाउट्स पूछे हैं, तो चैप्टर वाइज मैं सारे डाउट कंपाइल करके एक एक वीडियो बना रहा हूँ, और होप यू विल प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, जेईई मेंस है, नीट हो, एडवांस है, वहाँ पे आपको ये सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।